حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تو ابو بکر صدیق بن گیا، سب سے بڑا سچا بن گیا۔ حضور نے تربیت کی تو فاروق اعظم بن گئے، عادل کے پیکر بن گئے۔ اگر حضور نے تربیت کی تو عثمان حیا جیسا پیکر بن گیا۔ اگر حضور نے تربیت کی تو علی جیسا شیر خدا بن گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم و مکرم محترم عزیز دوستو، سب سے بڑی چیز ہے تربیت۔ تربیت کے 3 بڑے ذرائع ہیں۔ چھوٹے بڑے ذرائع تو اور بھی بہت ہیں، لیکن 3 بڑے ذرائع جو تربیت کے ہیں، وہ سب سے پہلا ذریعہ والدین ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اس کو اچھا پھل ملے گا۔ اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو آپ کو برا پھل ملے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو سلمان تاثیر جیسا پیدا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا تو ممتاز قادری جیسا آدمی پیدا ہوگا۔ یہ تربیت میں فرق ہے۔ ماں اگر تربیت کرتی ہے اپنے بیٹے کی تو باپ گھوڑے کے اوپر چڑھ کر قرآن پڑھتا ہے، ماں چکی پیستی ہوئی قرآن پڑھتی ہے، اور پھر بیٹا ایسا پیدا ہوتا ہے کہ نیزے کے اوپر چڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ سر نیزے پہ ہے لیکن قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ تربیت کی بات ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے۔ جب صبح کے لیے آپ نماز کے لیے اٹھتے تھے، سب سے پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کا دروازہ کھٹکاتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت والو نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کبھی نہیں دیکھا سوئے ہوئے رات۔ جب بھی میں نے دیکھا ہے تو مصلی پہ کھڑی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ ہے تربیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی۔ حضرت امام حسن بھی دین کے لیے شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت امام حسین بھی دین کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ تربیت جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں گانا چلے گا، جس گھر میں تربیت نہ ہو اس گھر میں گالی گلوچ ہوگی۔ اگر تربیت اپنی اولاد کی آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ کی بیٹی گانا سن کے ناچ کے ٹھمکا لگائے گی۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا باہر آدمی آیا ہوا ہے، اگر وہ فلاں آدمی ہو نا، میرا نام پوچھے تو آپ کہہ دینا کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ وہ بچہ جا کے کہتا ہے کہ ابو کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ جب ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھلائیں گے تو ان پر کیا اثر پڑے؟ وہ پوری زندگی جھوٹ ہی بولیں گے۔ اگر ہم اپنے بیٹوں کو کہیں گے، اپنی اولاد کو کہیں گے کہ سچ بولنا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بیٹے پیدا ہوں۔ چوروں کے سامنے بھی وہ سچ بولے گا اور پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر بھی وہ سچ بولے گا۔ اگر اس کے آگے بندوق آ جائے گی تو پھر بھی وہ سچ بولے گا، کیونکہ تربیت اس وقت بولے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو گئے تھے، نیزوں کے سامنے قرآن مجید پڑھا۔ تربیت تھی۔ ہائے ہائے، ایک ٹیچر صاحب تھے، وہ 10ویں کلاس کو پڑھاتے تھے، لیکن اول کلاس والوں میں سے جو استاد پڑھاتا تھا، اول کلاس والوں کو وہ استاد نہیں آیا تھا۔ پرنسپل صاحب نے کہا اس
मास्टर साहब से, उस टीचर से कि वो अव्वल क्लास वाला उस्ताद नहीं है, आप अव्वल क्लास में आकर इन बच्चों को देखें, ये बच्चे शोर कर रहे हैं। वो मास्टर साहब चले गए। मास्टर साहब जाते हुए कुर्सी पे बैठ गए और बैठ के ये बात कही कि बच्चों किताबें बंद कर दो, अब छुट्टी होने वाली है। बच्चों ने किताबें बंद कर दी। मास्टर साहब पूछने लग गए बच्चों से कि आपने, कि एक बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, किसी ने क्या कहा। एक बच्चा बैठा हुआ था, ऐनक लगा के बैठा हुआ था एक कोने में। मास्टर साहब ने उससे पूछा कि हर किसी ने बतलाया है कि आप, किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा कि बिजनेसमैन बनूंगा, किसी ने कहा कि इंजीनियर बनूंगा। बच्चा आपने क्या बनना है? उस बच्चे ने कहा उस्ताद जी मैं सहाबी बनूंगा। मैं क्या बनूंगा? सहाबी बनूंगा। जब मास्टर साहब ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए। कहा बेटा आप सहाबी कैसे बनेंगे? वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ हर सहाबी की कहानी सुनाती है, कभी कौन से सहाबी की कहानी सुनाती है, कभी कौन से सहाबी की कहानी सुनाती है, और मेरी वालदा कहती है कि आप सहाबी जैसा ही बनना है। सहाबी सच बोलते हैं, सहाबी झूठ नहीं बोलते, आपने भी ऐसे बनना। मास्टर साहब मैं सहाबी बनूंगा। लेकिन वो सहाबी बन तो नहीं सकता था, लेकिन नकल तो उतार सकता था। सहाबी वो होता है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करे और ईमान की हालत में उसको मौत आ जाए, उसी सहाबी कहते हैं। क्योंकि उसकी वालदा ने उसकी तरबियत की हुई थी कि बेटा आपने क्या बनना है? सहाबी बनना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत की तो अबू बकर सिद्दीक बन गया, सबसे बड़ा सच्चा बन गया। हुजूर ने तरबियत की तो फारूक आजम बन गए, आदिल के पैकर बन गए। अगर हुजूर ने तरबियत की तो उस्मान हया जैसा पैकर बन गया। अगर हुजूर ने तरबियत की तो अली जैसा शेर खुदा बन गया। मेरे आका ने तरबियत की तो बिलाल खाना काबे के छत के ऊपर खड़े होकर अजान देते हैं और अमीर मुआविया जंगों में लड़ते हैं। ये तरबियत थी मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की भी तरबियत फरमाते थे। तरबियत एक बहुत बड़ी चीज है, तरबियत होनी चाहिए। एक बुजुर्ग से किसी आदमी ने पूछा कि हमारी तनख्वाह बहुत है लेकिन बरकत नहीं, बरकत चली गई है। बरकत क्या है? चली गई है। उस बुजुर्ग ने कहा, उस आदमी ने कहा मुझे आप जवाब दे, बरकत क्यों नहीं आ रही? उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं इसका जवाब देता हूं। आप सबसे पहले आप ये बताएं कि कुतिया के कितने बच्चे होते हैं? कुतिया के कितने बच्चे होते हैं? उसने कहा 10-12 बच्चे होते हैं कुतिया। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बकरी के कितने बच्चे होते हैं? उसने कहा 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होते हैं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि रेवड़ किसके होते हैं ज्यादा? उसने कहा बकरियों के। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि अगर आप सफर करते हैं तो आप देखते हैं सफर के दौरान कितने कुत्ते मरे पड़े होते हैं। अगर कराची से पेशावर चला जाए आदमी तो 10-12 कुत्ते मरे पड़े होते हैं सड़क के ऊपर, ट्रक के नीचे आ जाते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा कि आप जिस शहर में जाते हैं बकरे कितने ज़िबा होते हैं? उस आदमी ने कहा कि हर होटल पे बकरे ज़िबा होते हैं, हर कसाई की दुकान पे बकरे ज़िबा होते हैं। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कुतिया के बच्चों में बरकत क्यों नहीं है और बकरी के बच्चों में बरकत?
कैसे है। उस बुजुर्ग ने एक बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया। उस बुजुर्ग ने कहा कि कुतिया सारी रात जागती है, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता है, सुबह होती है तो वो सो जाता है। वो कुतिया सो जाती है। और फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि बकरी सारी रात सोती है, जब नमाज का वक्त आता है, सुबह की नमाज का वक्त, तो बकरी जाग जाती है। बकरी जाग जाती है। उस बुजुर्ग ने कहा कि बरकत के वक्त कुत्ता सो जाता है, तो इसीलिए बरकत नहीं है, वो बरकत का वक्त होता है। बकरी जाग जाती है तो उसमें बरकत आ जाती है। उस बुजुर्ग ने कहा कि आप बरकत के वक्त आप सोए रहते हैं, कुत्ते की तरह आप सोए रहते हैं। बरकत तो चली जाएगी, बरकत के वक्त तो आप सो जाते हैं। उस बुजुर्ग ने कैसे मिसाल दी है कि जो बंदा सुबह की नमाज के वक्त उठ जाता है, वो बरकत का वक्त होता है। अल्लाह उस वक्त रोजी बांटते हैं। हम नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला रोजी बांटते हैं। बरकत का वो वक्त होता है, हम वो जाय कर देते हैं। फिर कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, हमारी तनख्वाह में बरकत नहीं है। मौलवी की तनख्वाह में बरकत क्यों होती है? वो 10-12 हजार रुपया उसको तनख्वाह मिलती है, उसमें क्यों बरकत होती है? वो बरकत वक्त उठ जाता है, अदान देता है, नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, फिर नमाज के बाद तिलावत करता है। उसके 8-10 हजार रुपए में अल्लाह तबारक व तआला 1 लाख के बराबर कर देते हैं। जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, वो 20 तारीख के बाद किसी से मांगना शुरू कर देगा। कहा कि वो कहेगा कि हमारे हालात टाइट हो चुके हैं, 2 लाख रुपए तनख्वाह है लेकिन बरकत नहीं है। आप अगर मौलवी साहब से पूछें तो मौलवी साहब कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, लेकिन मौलवी साहब के बच्चे भी 10-12 बच्चे भी होंगे, लेकिन फिर मौलवी साहब कह रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 10-12 हजार रुपए तनख्वाह और 10-12 बच्चे, बरकत है। दुआ है जो कुछ कहा अल्लाह तबारक व तआला